morning to all lovely, beautiful friends. Love you so much and hope you must be taking care of your immunity, health, and family. We are conducting so many FB Lives on Sunday, and if you are interested and missed out some talks, you can watch it on my FB page. I've chosen today's topic, that is Teen Talk, as I love teenage because in teenage, so much to do and so little time. जिंदगी भर हम जो खाना चाहते हैं उसके बीज बोने का टाइम बस यही होता है. And till now, if you have not shared the link to your every profile and groups of this talk show, so please do the same, because today we are talking about our youngsters who are the foundation of our nation. So thank you so much for sharing the links. And now let's begin with the talk. The most important time in life for the brain growth. This is the master key. Brain is the master key, इसलिए वो हमारे top floor पे रहता है. So first is the 0 to 3 years, very important time, and the second is 13 to 19 years, right? So we are taking 13 to 19. This is teen age, which is full of excitement, fun, adventure, fantasy, first love, new hobbies, habits, identity formation, sexual orientation, experimentation, a lot of studies, career, and many more. So this is the time actually for exponential growth, physical, emotional, and intellectual. And in this little bit tough time, जिसमें हम COVID में हैं, lockdown है, and now post lockdown time, I'm seeing a very bleak picture. So here I am, Lavanya Patel, psychologist, counselor, hypnotherapist, NLP trainer, life coach, and the director of Ananya Psychological Center, Vapi, serving in the field of mental health for the last 20 years. And these days, I'm getting so many cases of breakups, mobile game addiction, weed addiction, anger outburst, depression, anxiety in youngsters. And just looking at them, I was so worried how beautiful developing brains are getting hooked up and doing so many bizarre things just to look cool. It's really terrible. And being a psychologist, I can talk with only real case studies and facts. So let me begin. A few days back, 18-year-old boy, 18 साल का लड़का, 5'7" height, 96 kg weight, and wearing a navy blue tracksuit, black cap lagaya, looking down, fluffy eyes and somber face, and entered into the center of my Ananya Center and just sat in front of me. Left में उसकी mom और right में उसके daddy बैठे, and parents have started talking to me कि ये रात भर सोता नहीं है, ही इज ऑल द टाइम स्लीपलेस रहता है, कोई फ्रेंड्स नहीं है, टोटली डिस्कनेक्ट हो गया है, बहुत गुस्सा करता है, इरिटेट इतना होता है कि जब गुस्से में आता है ना सामान उठा के फेंकता है, कई बार बोलता है मैं मर जाऊंगा, आप लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हो. 19 kg एक साल में इसने अपनी बॉडी में डेवलप किया हुआ है, 19 kg वेट पुट ऑन किया है, रोज जंक फूड खाता है, कमरे में अकेला रहता है, किसी से बात नहीं करता. जब हम इसके पास जाते हैं, इससे पूछते हैं बेटा क्या प्रॉब्लम है, शेयर करो, तो कभी शेयर ही नहीं करता. जब पेरेंट्स ऐसी बात करते हैं तो फिर मैंने उनको बच्चे को बाहर बैठाया एंड देन पेरेंट्स कंटिन्यूड कि मैम टिल 7th तक ये बच्चा 90+ % वाला था, एंड 8th में तो ऐसा हुआ कि जिस स्कूल में था वहाँ ये कंप्लेन आई हमें कि एक लव लेटर किसी लड़की को लिख रहा था और बहुत बड़ा इशू हो गया स्कूल में, तो हमें स्कूल को भी शिफ्ट करना पड़ा. फिर हमने इसको हॉस्टल में डाल दिया एंड 9th-10th हॉस्टल में पढ़ा, लेकिन हॉस्टल में भी 10th में मैम बेयरली पास हुआ, 42% से पास हुआ. तो जब ऐसा रिजल्ट आया तो हमने उसको वापस घर पे ले आए, लेकिन अब जब से वो वापस आया ही इज नॉट विलिंग टू स्टडी, बोलता है सब बेकार है, मेरे को पढ़ना ही नहीं है. फिर भी हम पीछे पढ़ के इसको 11th कॉमर्स में एडमिशन दिलाया, लेकिन स्कूल जाने को तैयार नहीं है. जब देखो तब पेट दुख रहा है, बॉडी एक हो रहा है, मूड ही नहीं है, गुस्सा करना, और इस तरह से स्कूल में उसने एब्सेंट रहना मैम शुरू कर दिया. एंड जब घर पे रहते, क्योंकि हम दोनों हस्बैंड वाइफ तो काम पे चले जाते थे, जब वो घर पे रहता था तो ऑल द टाइम मोबाइल में पूरी रात पबजी खेल रहा है, फ्री फायर खेल रहा है, और यदि नहीं बोलो तो इतना गुस्सा करता है और फिर बोलता है कि मैं मर जाऊंगा, मुझे जीना ही नहीं है, और तोड़फोड़ करता है.
दिन दिन में सुबह 12 बजे सो के उठता है और जब सबके उठने का टाइम होता है तब 5 बजे सुबह सोता है मैम। जोमेटो से मंगा के खाता है। 11th की एग्जाम दी, फोर्सफुली दी, लेकिन फेल हो गया उसमें और अब बोलता मुझे पढ़ना ही नहीं है। And it's very amazing that this is the boy came to me 3 years back for career counseling. And they brought the report also that this boy was a brilliant boy with 119 IQ, with abstract thinking and a lot of creativity. और उस समय इस बच्चे ने decide किया था कि मुझे cinematography करना है. He was so much passionate about all the pictographs, all abstract things and picture लेना, उसको design करना. He was so much passionate about it at that time. अब now see, 3 साल पहले और आज में, what a drastic change. And I was so puzzled looking at him कि फिर मैंने उसको बुलाया, I called him in and started talking to him alone. जब उस बच्चा सामने बैठा, the first statement, ma'am, I just wanted to come out of this. Please help me. Every time I tried, but I failed. I'm just fed up. Unable to concentrate on anything. I read, I learn, but every time I forget. Unable to sleep till 4 or 5. और मैं सोचता हूँ कि मैं नींद नहीं आ रही तो क्या करूँ, तो चलो मोबाइल में गेम खेलते खेलते शायद मैं थक जाऊंगा तो मैं सो जाऊंगा. एंड यू कैन नॉट बिलीव मैम कि आज मुझे रात भर नींद नहीं आती. एंड टुडे आई एम एडिक्टेड टू इट. 1000 टाइम्स मैंने पबजी को अनस्टॉल किया अपने मोबाइल से, लेकिन जब भी मैं रूम में जाता हूँ अपने, तो ऐसी क्रेविंग होती है मुझे खेलने के लिए और फिर से मैं इंस्टॉल करता हूँ और फिर से मैं खेलता हूँ. आई हेट माई लुक्स, आई हेट माई बॉडी. एवरी डे आई डिसाइड टू हैव होम फूड, बट एज पेरेंट्स लीव फॉर ऑफिस, समथिंग हैपेंस इनसाइड माय बॉडी और मैं बस कॉल करता हूँ, ऑर्डर करता हूँ, पिज्जा खाता हूँ, बर्गर खाता हूँ, वेफल खाता हूँ, और इतना सब खाने के बाद ना कहीं थोड़ा सा जो है मुझे अच्छा लगता है. But I just hate see myself in front of mirror. जब भी मिरर में देखता हूँ ना तो मुझे गुस्सा आता है. You cannot believe कि एक महीना हो गया मैंने अपने को मिरर में देखा नहीं है. प्लीज मैम चेंज कर दो, मैं परेशान हो गया हूँ. एंड मेरे जब सारे फ्रेंड्स को मैं देखता हूँ सब आगे बढ़ते जा रहे हैं, मुझे इतना इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है अपने को लेके कि वो जब मुझे कभी कॉल भी करते हैं मैं उनका कॉल भी पिक नहीं करता कि मैं क्या बात करूंगा उनसे. पापा भी ऑफिस में उनके रोज नए नए अचीवमेंट्स होते हैं, उनका नाम इतना होता है एंड अंदर इतना जेलसी फील होता है मुझे, और कई बार मुझे शर्म भी आती है कि एक्चुअली मैं अपने फादर के लिए क्या सोचता हूँ. जब वो इतनी सारी बात बता रहा था, देन आई आस्क्ड, क्योंकि मुझे पता था लास्ट टाइम कि ही वाज हैविंग अ गर्लफ्रेंड. मैंने बोला कि अच्छा हाउ इज योर गर्लफ्रेंड बेटा, so please don't ask me about her because she's dating my best friend. Please help me. I'm feeling totally frustrated and depressed. My dear friends, I'm not saying कि ये ऐसा हर बच्चे के साथ हो रहा है, लेकिन ये अकेला young boy नहीं है. Many youngsters are on this journey. Either they have started in the middle or in the last helpless stage. I'm not here to say anything कि सही क्या है, गलत क्या है. It's your choice. And I trust your courage and choice to stand out of the crowd. And I'm here just to help you to have the best choices with all scientific truths. So after taking so much of care, precaution, and pampering by the one say, hello? After taking so much of care, precaution, and pampering, what is happening to you because you are losing focus on studies, आउटडोर गेम्स, बहुत गुस्सा आता है, एंगर आउटबर्स्ट हो जाता है, फिर बिंज ईटिंग कर रहे हैं. आज बच्चों में देखो तो इतना ओबेसिटी आ रहा है जो हमारे समय हमने तो कभी देखा ही नहीं है. आज छोटे छोटे से बच्चे 7 इयर्स के, 10 इयर्स के, 12 इयर्स के इतने मोटे होते हैं, खुद ही वो पिज्जा बर्गर जैसे दिखने लगे हैं. एंड टू मच ऑन गैजेट्स, और कभी कभी तो एडिक्शन भी हो रहा है. और एडिक्शन का मतलब यदि आपको नहीं समझता हो तो एडिक्शन सिंपल मीन्स you are emotionally dependent upon someone. Emotionally dependent का means
कि यदि ये चीज ये मेरे पास है, आई एम सो हैप्पी, एंड यदि ये मुझसे छीन ली गई है तो आई एम टोटली सैड एंड डिवास्टेटेड, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं करूं क्या। इट मीन्स नाउ यू आर एडिक्टेड। बहुत बार होता है कि बच्चे चोरी भी कर रहे हैं, झूठ भी बहुत बोल रहे हैं, रिस्क टेकिंग बिहेवियर, कि बहुत स्पीड में ट्रेन आ रही है उसके सामने खड़े होकर सेल्फी ले रहे हैं। अभी 2-4 दिन पहले एक वीडियो देखा कि 2 लड़कियां, और फ्लडिंग चल रहा है, पानी बह रहा है, और उसके बीच में जाके दे आर टेकिंग द सेल्फी, जिसको बचाने के लिए जब लड़कियां फंस गई तो 16-17 पुलिसमैन आए, तब उनको खींच के बाहर निकाला गया। बाइक में हाईवे के ऊपर स्टंट कर रहे हैं, फिर एक्सपेरिमेंट विद द सिगरेट, अल्कोहल, वीट, पॉर्न, सेक्स एंड शेयरिंग। मेनी टाइम्स द केसेस आर कमिंग टू अस कि लड़कियां, बच्चे जो हैं, टॉवेल पिक्स, अपने नूड पिक्स अपने बॉयफ्रेंड को शेयर कर रही हैं, और उसके बाद फिर ब्लैकमेल होने का शिकार हो रही हैं, उनके फोटोज वायरल हो रहे हैं, एंड द प्री मेच्योर प्रेगनेंसी। अब इतनी सारी चीजें, और इससे भी बहुत ज्यादा जो अभी हो रही हैं, व्हाट आर द रीजंस, वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट, कि ये सब चीजें ट्रिगर क्यों हो रही है। So, all my dear friends, I'm just focusing on 3 points. Number one, what is the basic need of teenage? ये क्यों behavior trigger हो रहा है? Once we understand ना कि इसकी वजह से ये behavior trigger हो रहा है, तो हम immediately उस पर break लगा सकते हैं. Number one, what is the basic need? One is the power. पावर मीन्स इस एज में जैसे उनका फिजिकल और इमोशनल और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होता है, दे वांट टू फील दैट पावर, इंपॉर्टेंस एंड द अथॉरिटी। और इस नीड को फुलफिल करने के लिए उनके पास जो भी रोल मॉडल अवेलेबल है, एंड द वेरी नेक्स्ट टू द पर्सन, द रोल मॉडल इज देयर फादर। फादर है या कोई सेलिब्रिटी है या सोशल मीडिया में कोई है, और वो जो करता है वो सारा ये करेंगे। यदि पापा गुस्सा करते हैं तो ये भी गुस्सा करेगा, यदि वो सामान उठा के फेंकते हैं और वो कमाते हैं तो दैट इज द मीनिंग ऑफ पावर। यदि वो एब्यूजिव लैंग्वेज यूज करते हैं तो बच्चा फट से उसको पिक करता है। एंड दिस power again, you can see it in PUBG or Free Fire, जहां आप totally free हैं and you're showing your power and the authority to do anything, क्योंकि ये पूरा violent और aggression से भरा है। तो first thing, what is the basic need? To feel very powerful. The second need is you want to be loved by someone. You want that extra care, affection by someone. I'm telling you, एक बच्ची आई, she was just 14 years old, और she was madly in love with a Korean boy. अब शी स्टडिंग समवेयर इन अ वेरी बिग स्कूल, लेकिन उसका जो बॉयफ्रेंड है, जो उसने बताया कि ही स्टेइंग इन कोरिया एंड वहाँ ऑर्फनेज में रहता है, और डेली उससे वो फोन पे बात करती है और कहती है कि मैं, वो मेरा बॉयफ्रेंड है, लेकिन वो कभी भी मिली नहीं है, उसका सोशल मीडिया से कांटेक्ट हुआ है, एंड शी इज जस्ट मैडली इन लव। और वो जब उन लोग घंटों घंटों रात रात भर बात करते हैं, तो जब वो बच्चा बताता है कि मेरी लाइफ में कोई नहीं है, मैं यहाँ ऐसे रहता हूँ, लाइफ में सब पनिशमेंट है, कभी वो सेल्फ हर्ट करता है, कभी सेल्फ इंजुरी करता है, और इस बच्ची को पूरा शेयर करता है। एंड दिस फैमिली बिलोंग्स टू अ वेरी वेल टू डू फैमिली, जिसमें सब बहुत लविंग एंड केयरिंग है, लेकिन कंटिन्यूसली ऐसे लोगों के कनेक्शन में रहना। और ये जब बच्ची बात करती है, उसको बहुत केयरफुली वो लिसन करता है, इसको लगता है कि बस यही सुनता है, यही समझता है, और इसके सिवा मेरी दुनिया में कोई है ही नहीं। And now she started feeling I'm also depressed. लाइफ में भी कुछ भी बाकी नहीं है, सारी दुनिया ही ऐसी, कोई किसी को प्यार करता ही नहीं है। Now see कि what a wrong interpretation of love. आप सिर्फ सोशल मीडिया से दोस्ती कर रहे हैं किसी के साथ, एंड यू आर गेटिंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हिज टॉक्स, हिज फीलिंग्स, हिज इमोशंस, राइट? सो you, the basic need you need to understand कि you are in search of love, affection, care, right? And the third is your basic need. You want a special attention, appreciation and reward. अभी एक बच्चा आया था 2 दिन पहले, he was a 12-year-old boy. अब वो फ्री फायर खेलता है, उसकी मामा बोलती है कि आप पहले पूरी पढ़ाई कर लो और उसके बाद तुम्हें इतनी देर खेलना है। और अब उसकी मामा ने इसलिए लेके आई थी कि आजकल बहुत इरिटेट होता है, बहुत गुस्सा करता है। तो जब मैंने पूछा है कि तुम ऐसा इरिटेशन किस बात पे होता है, तो वो बोलता है कि जब मेरे पॉइंट्स पे पॉइंट्स मिल रहे हैं मुझे फ्री फायर, आप मैम जानते नहीं हो मुझे गोल्डन लेवल या प्लेटिनम कौन सा लेवल उसने बताया था, मैं वहां तक पहुंच गया हूँ, और उसमें इतने गिफ्ट्स मिलते हैं, इतने प्राइजेस मिलते हैं, तो दैट इज द रिवॉर्ड। मैंने बोला तो तुम्हें प्राइजेस प्राइजेस कैसे मिलते हैं, मतलब ऑनलाइन वो डिलीवर करते हैं, क्या करते हैं?
नहीं नहीं, वो ऐसा ऑनलाइन डिलीवर नहीं करते हैं, उसमें वो रेटिंग्स होती है, हमें वो रेटिंग्स मिलती हैं और उसके बाद वो स्टिकर मिलते हैं कि नाउ यू आर इनटू द गोल्डन, तुम डायमंड या तुम प्लैटिनम में पहुंच गए हो। I was so much amazed कि आप उस रिवॉर्ड के लिए इतना एनग्रॉस्ड हो जाते हो कि बीच में यदि मॉम या डैड ने आपको खाने के लिए भी बुला लिया तो यू गेट जस्ट इरिटेटेड बिकॉज यू डोंट वांट टू लूज दैट रिवॉर्ड, दैट स्पेशल अटेंशन और द एप्रिसिएशन। सो मैंने उससे बोला कि अच्छा, यदि तुम इतने ही खुश हो जाते हो कि वो जो पिक्स और स्टिकर्स दे देता है और तुम गोल्डन में पहुंच गए हो, तुम अपने फ्रेंड से सारा शेयर करते हो, यदि मॉम भी तुमको खाना यदि स्टिकर में दे दे कि ये लो नाउ दिस इज योर पिज्जा, दिस इज योर बर्गर, तो विल यू बी हैप्पी? तो बोलता है नहीं नहीं नहीं, मॉम से तो मुझे पूरा ही चाहिए, ये तो हम जब गेम खेलते हैं ना तब हमें वहां पे रिवॉर्ड मिलते हैं। नाउ सी, your basic need is to get that special attention, appreciation and reward, और जिसके लिए आप चूज करते हैं पबजी, जिसमें उसमें आपको नंबर मिलते हैं, आप फ्री फायर और दूसरे सारे गेम जिसमें आपको स्पेशल अटेंशन मिलता है। The fourth is, what is the basic need, is your freedom. बिकॉज नाउ यू इंटेलेक्चुअली ग्रो कर रहे हो, इमोशनली ग्रो कर रहे हो, फिजिकली अब बड़े के समान होते जा रहे हो। सो नाउ यू वांट द फ्री प्लेटफॉर्म टू स्पीक, गेट एक्नॉलेज्ड एंड एप्रिसिएशन फॉर आइडियाज एंड यू डोंट वांट टू स्टे विद द पेरेंट्स। एक बच्चा यहाँ पे आया, एवरीथिंग इज वेरी गुड, ही इज द ओनली चाइल्ड ऑफ हिज पेरेंट्स, उसको सब कुछ अच्छा है, लेकिन बस मुझे पेरेंट्स के साथ रहना ही नहीं है, मुझे तो कहीं दूर भेज दो, मैं वहां अच्छे से पढ़ लूंगा। इज वेरी गुड इन स्टडीज, द रीजन इज ओनली कि मुझे इतना ज्यादा रोक टोक करते हैं, इतना रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं, बार बार पूछते रहते हैं, मेरे को सलाह देते रहते हैं। आई डोंट वांट ऑल दिस थिंग, आई वांट दैट फ्रीडम कि मुझे जो चाहिए मैं वही करूं, and that's why मैं पेरेंट्स के साथ नहीं रहना चाहता। So you want actually the basic expressions and get acknowledged for this expression. And the fifth basic need is to get associated with the group, with the like-minded people. एक बच्ची का मैं आपको बताऊं कि बच्ची हैदराबाद में पढ़ रही है, हॉस्टल में है। अब ये जो बच्ची है, ये आई थी, ये भी माइल्ड डिप्रेशन का केस था। रीजन क्यों डिप्रेशन? क्योंकि वो कोई और दोस्त बना नहीं पाती, तो जो उसने एक बॉयफ्रेंड बनाया है, उस बॉयफ्रेंड को स्मोकिंग की हैबिट है, वो उसके लिए एडिक्ट है। तो जब वो अपने फ्रेंड्स के साथ रहता है और ये भी उसके साथ रहती है, टू गेट एसोसिएटेड विद द बॉयफ्रेंड एंड द ग्रुप, ही हैज टू स्मोक, नहीं तो शी फील्स कि हम लेफ्ट आउट, ना मैं मेरा कोई और दोस्त है, ना मैं इस ग्रुप में रह पाती हूँ, तो मुझे वहां पर स्मोकिंग करनी पड़ती है। और जब करते करते मेरे को अब ऐसा लगता है कि जब मैं स्मोक करती हूँ तो आई फील सो रिलैक्स्ड। The same way happens with the PUBG. When 3 or 4 people are talking about PUBG, तुझे इतना किया, मैंने इतना किया, और they are playing in the groups, you feel left out, and but you want to get associated with some group, and because you are not doing anything, even you are not playing the PUBG, you start playing the PUBG under the influence of these talks, and you want to get associated with this group. So first you need to understand what is the basic need of your age. You want power, you want love, special attention, you need freedom, and you need the association. ये 5 basic needs हैं जो तुम्हारे सारे behavior को trigger करती है, right? So, but the problem is कि बिहेवियर तुम चूज तो कर लेते हो, ट्रिगर भी हो जाता है, लेकिन योर ब्रेन स्टिल डज नॉट हैव द स्टॉप बटन, उसके पास अभी भी स्टॉप बटन नहीं है, राइट? सो सेकेंड रीजन कि क्यों स्टॉप बटन नहीं है, तुम शुरू तो करते हो पबजी खेलना, फ्री फायर खेलना और दूसरे गेम खेलना, मोबाइल को यूज करना, इंस्टा को यूज करना, और भी बहुत सारी चीजें करते हो, लेकिन तुम स्टॉप कहाँ करना है नहीं समझ पाते हो। सो one sec, right? So now the second reason, हमारा ब्रेन का the most important part is प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो ये फोरहेड के पास अंदर की तरफ होता है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जिसको बोलते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द होल बॉडी एंड द रेगुलेशन, कंट्रोल, मैनेजमेंट, डिसीजन मेकिंग, जजमेंट, प्लानिंग, सब चीज ये प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स से होती है। एंड इसका डेवलपमेंट होता है टिल द एज ऑफ 23, लेकिन
18 के बाद से 23 तक बहुत अच्छे से डेवलपमेंट होता है, लेकिन उसके पहले ये डेवलप नहीं होता। एंड दैट इज द बेसिक रीजन कि आपको ड्राइविंग लाइसेंस 18 के बाद मिलता है, आप मैरिज के लिए तैयार होते हो 18 के बाद, आपको वोटिंग का राइट मिलता है 18 के बाद, राइट। रीजन सिंपल है, क्योंकि वो एरिया ब्रेन का जो जिसके पास आपकी गाड़ी का गियर है, जिसके पास ब्रेक लगाने की ताकत है, और जिससे प्रॉब्लम सॉल्विंग आती है, जिससे डिसीजन मेकिंग आता है, जिससे हमारे पूरे बिहेवियर को कंट्रोल किया जाता है, हम किसी भी चीज को प्लान कर पाते हैं, हमारा जजमेंट परफेक्ट काम करता है, हम कुछ भी एक्शन लेते हैं तो हम उसके कॉन्सिक्वेंस को पहले ही इमेजिन करते हैं, उसके बाद ही एक्शन लेते हैं, एंड देन ओनली वी आर एबल टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। यदि आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स बिल्डअप हुआ ही नहीं है इन द एज ऑफ टीन, तो इस समय इसलिए आपको किसी लड़की की जवाबदारी उठाना, प्यार करके कमिट कर लेना कि हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे, क्योंकि दिस टाइम यू आर नॉट रिलायबल, you are not valid, and you are not trustworthy, because of that decision making power is still not developed. But from where are you taking the decision? You are taking the decision जो पीछे की तरफ एक एमेक्टेला होता है। एमेक्टेला ये वो चीज है जिसको आप मन भी बोल सकते हो, जिसमें सिर्फ सारे डिसीजन प्लेजर और पेन प्रिंसिपल पे होते हैं। जिस चीज में मजा आता है बस वो करो, जिस चीज में हाई लगता है वो करो, जिस चीज में किक मिलता है वो करो। और कुछ काम आप तभी भी करते हैं जब आपको पेन फील होता है, जैसे मम्मी पापा की डांट पड़ जाएगी, स्कूल में टीचर सबके सामने बेइज्जती कर देंगे, कुछ ऐसे टॉन्ट मिल जाएंगे जिसकी वजह से मुझे ये नहीं करना, नहीं सुनना, इसमें इसलिए मैं काम करूं। तो इट वर्क्स, एमिगडाला वर्क्स ओनली अपॉन द प्लेजर एंड पेन प्रिंसिपल। यहाँ सिर्फ इमोशंस होते हैं, एग्रेशन होता है और इम्पल्सेस होते हैं। बस मुझे ये करना, ये करना, आज मुझे ये चाहिए, मुझे ये खाना है, मुझे इस तरह का मोबाइल, इस तरह के कपड़े, इस तरह का ब्रांड, बस ये यही काम करता है। एंड योर इंफॉर्मेशन प्रोसेस इज हैपनिंग राइट नाउ विथ एमिगडाला, जो यहाँ पर है। लेकिन प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, इसका अभी डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, इट इज ऑन द प्रोसेस। सो इसलिए तुम्हारे डिसीजन रॉन्ग होते हैं, और तुम्हारे पेरेंट्स के और तुम्हारे सोचने के तरीके में बहुत बड़ा गैप हो जाता है। और जिसको लोग यूजुअली जनरेशन गैप कहते हैं, इट इज नॉट अबाउट एनी जनरेशन गैप, इट इज ओनली अबाउट कि वो अपने प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स से सोचते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस देखते हैं, तब तुम्हें वो पैसे देते हैं और सामान देते हैं, और तुम सिर्फ एमिगडाला से इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हो और मुझे ये चाहिए ही चाहिए। नाउ सी, पूरी बॉडी का the most important part is your prefrontal cortex, chief executive officer of the brain, that is the master key। अब ये मास्टर की को यदि डेवलप करना है, क्योंकि यदि लाइफ में कुछ बड़ा करना है, फेमस होना है, फ्रीडम चाहिए, यदि इंपॉर्टेंस चाहिए, यदि पॉपुलैरिटी चाहिए, सो वी नीड टू वर्क ऑन प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कि मैं इसको डेवलप कैसे करूं और फास्ट डेवलप करूं, राइट। अब इसके लिए ओनली फ्यू थिंग्स यू नीड टू डू टू डेवलप दैट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जो सारी बॉडी को रेगुलेट करेगा और तुम्हें तुम्हारे दोस्तों के बीच में बहुत इफेक्टिव बना देगा। सो फर्स्ट इज a lot of information and discussion। बहुत सारी इंफॉर्मेशन अपार्ट फ्रॉम योर स्टडी बुक्स, जितनी इंफॉर्मेशन लेते हो और डिस्कस करते हो, बुक्स में पढ़ते हो, टीचर से डिस्कस करते हो, एल्डर से डिस्कस करते हो, पेरेंट्स से डिस्कस करते हो, गूगल में जाके छानते हो, बस समझ लो जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन आती है तुम्हारी थिंकिंग, लॉजिक, रीजनिंग बिल्डअप होना शुरू हो जाती है, राइट। सेकेंड, फिजिकल एक्टिविटी। तुम जितना स्पोर्ट्स, म्यूजिक, डांस, कराटे, कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी करते हो, यू कैन नॉट बिलीव तुम्हारे ब्रेन में से एंडोर्फिन, डोपामिन रिलीज होता है। दीज आर द टू केमिकल्स, दीज आर हैप्पी हार्मोन्स। यू ऑलवेज फील वेरी गुड अबाउट योरसेल्फ, कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई होता है, सेल्फ एस्टीम लेवल एकदम हाई होता है, एंड यू हैव अ लॉट टू टॉक अबाउट योरसेल्फ। आपने स्पोर्ट्स में ऐसा किया, डांस में ऐसा किया, आज ये सर्टिफिकेट, आज ये मेडल, आज ये मिला। So when three people are talking about PUBG and you are talking about this, so now see, you are in an active mode, you are talking in a very happy mode, you are there to influence other, not these 3 or 4 people who are indulged in all these addictive games। तुम उसको इम्प्रेस भी कर सकते हो और इन्फ्लुएंस भी कर सकते हो। सो सेकेंड इज द फिजिकल एक्टिविटी।
थर्ड, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को डेवलप करने के लिए चाहिए द ब्रेन का मेजर पार्ट तुम्हारी 8 से 10 घंटे की नींद। अब यदि रात को गेम खेल रहे हो, रात को वेब सीरीज देख रहे हो, रात को यदि सीरियल में लगे हो, तो अब बताओ सोएगे कब और स्कूल कब जाओगे, पढ़ाई कब करोगे? यदि 8 to 10 आवर्स की साउंड स्लीप लेते हो, तब समझ लेना कि ब्रेन के न्यूरोट्रांसमीटर न्यूरल कनेक्शन बढ़ रहे हैं एंड यू आर गेटिंग द प्रॉपर स्लीप और बॉडी और ब्रेन का परफेक्ट डेवलपमेंट हो रहा है। एंड बिसाइड्स दैट न्यूट्रिशियस फूड, आजकल इतना जंक फूड खा रहे हो एंड यू कैन नॉट बिलीव दुनिया का सारा सड़ा हुआ सामान आपके पिज्जा बर्गर में है। और जिस तरह से आप वेफर्स खाते हो, आइसक्रीम खाते हो और इतने मोटे मोटे होते जा रहे हो, what is this? That is totally addiction, जो आपकी cognitive ability, that is सोचने समझने की क्षमता को धीरे 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 खत्म करता है, आपके मेंटल बैलेंस को खत्म कर रहा है। आपको यदि यकीन ना हो तो सारे रिसर्च में गूगल में जाके देख लो कि आपका जो स्वीट आप इनटेक करते हो उससे हो क्या रहा है आपका। तो द थर्ड पॉइंट इज, रात को सोना बहुत ज्यादा जरूरी है और सोते समय आपका ये जो मोबाइल है, ये मोबाइल दूर दूर तक आपके पास नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका रेडिएशन बहुत डैमेज करता है आपकी स्लीपिंग हैबिट को, आपके ब्रेन के मैकेनिकल फंक्शन को डैमेज करता है। तो इट्स बेटर है कि आप इसको स्विच ऑफ कर दो। द फोर्थ, कैसे अपने ब्रेन को डेवलप करें, दैट इज मेडिटेशन। मेडिटेशन मीन्स इट इज द न्यूट्रिशन ऑफ माइंड। तुम अपने मन को इतना पावरफुल बनाते हो सेल्फ टॉक कर करके, बिकॉज मनोबल से बड़ा पावर इस दुनिया में कुछ नहीं है। एक हाथ नहीं है, एक पैर नहीं, एक आंख नहीं है, वो चल जाएगा। वो इंसान भी मनोबल के दम पे माउंट एवरेस्ट चढ़ जाएगा। लेकिन जिसका मनोबल टूटा हुआ है, आपने अभी सुना है सुशांत सिंह राजपूत का। सुशांत सिंह राजपूत का आज मॉर्निंग न्यूज में दिख रही थी मैं कि उसकी बहन ने कुछ उसका व्हाइट बोर्ड कुछ उसने स्क्रीनशॉट या ऐसा कुछ भेजा है, जिसमें उसके 29 जून के पूरे प्लान रखे हुए कि अब इसके बाद मैं क्या करूंगा। उसमें बड़ा क्लियर मैंने पढ़ा कि मेडिटेशन करूंगा, एक्सरसाइज करूंगा, फिटनेस पे ध्यान रखूंगा, दोस्तों से मैं बात करूंगा। नाउ सी, ये प्लान आगे का बनाया यदि यही सुशांत ने, जो बहुत सारे यंगस्टर्स का रोल मॉडल रहा हुआ है, यदि यही प्लान उसने एक्टिवेट कर लिया होता तो शायद ऐसा नहीं होता, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट। सो माय डियर फ्रेंड्स, प्लान बना के मत रखो, उसको एक्टिवेशन में लेके आओ, उसको उसको काम पे लेके आओ, ताकि ऐसी कभी भी दुर्घटना हमारे जीवन में या हमारे साथ वालों को नहीं हुई। सो मेडिटेशन, एंड यू कैन नॉट बिलीव इतना पावर है मेडिटेशन में। मेडिटेशन मीन्स ओनली द टॉकिंग टू द सेल्फ, और अपने आप को इतने पावरफुल थॉट से भरना कि मैं स्मार्ट हूं, मैं इंटेलिजेंट हूं, मैं डायनामिक हूं, आई कैन डू एनीथिंग, मैं बेस्ट हूं और मैं जो चाहे कर सकता हूं, मेरी एनर्जी बहुत अच्छी है, मेरी स्टेमिना बहुत अच्छा है, मेरा फोकस कंसंट्रेशन बहुत जबरदस्त है, एंड आई एम लवेबल, आई एम चार्मिंग, आई एम डायनामिक, एंड आई एम गॉड्स फेवरेट चाइल्ड। माय पेरेंट्स लव मी सो मच, माय फ्रेंड्स लव मी so much, my teachers love me so much, and I'm so lovable, and I am here to give my best performance. Now see, just 5 minutes is you're talking to you like this, सेरोटोनिन हार्मोन रिलीज हो जाता है एंड यू स्टार्ट फॉलिंग इन लव विथ योरसेल्फ। आपको किसी और लड़की या लड़के के पीछे भागने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो आपके पीछे भागेंगे, बिकॉज नाउ यू आर लविंग योरसेल्फ, यू आर फोकस्ड ऑन योरसेल्फ, एंड you are giving your best performance because you are doing meditation, giving lots and lots of positive powerful thoughts to your brain। और तुम्हारा मन यदि बहुत स्ट्रांग हो गया तो you can do anything, right? So, and the fifth is very important. मेरे यहाँ एक लड़की आती है खोजा सोसाइटी से, she is my staff, she's just first year and she's studying in college also, and I feel very proud on that girl। and मैंने खोजा में देखा है ये कि इनकी पूरी खुद एजुकेशन में दे आर गिविंग सो मच इम्पोर्टेंस ऑन एजुकेशन। ये बच्चे पढ़ाई करते
उसके बाद ये अपने स्कूल स्टडीज और हॉबी क्लासेस वो सारा करते हैं। और जितने भी यंगस्टर्स हैं जो कॉलेज में पढ़ते हैं, उनको ड्यूटी होती है कि शाम को इनको अपनी कम्युनिटी सर्विसेज करना है, जहाँ छोटे बच्चों को पढ़ाना है, किसी को हेल्प करना है, किसी को एजुकेट करना है, किसी की काउंसलिंग करना है। सो अब ये बच्ची 2 घंटे शाम को ये सारी एक्टिविटीज में, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन करना है, इन सारी चीजों में इन्वॉल्व होती है। देन आई कुड फाउंड कि इफ यू स्टार्ट हेल्पिंग अदर्स, इट मीन्स आपके ब्रेन में ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है। यू आर कनेक्टिंग टू अदर्स। अपने छोटों की हेल्प करना, अपने पेरेंट्स की हेल्प करना, अपनी कम्युनिटी सर्विस करना, कोई क्लब ज्वाइन कर लेना जो यंगस्टर्स का है, एंड यू स्टार्ट डूइंग वर्क। कभी ओशन के बाजू में जाके वहां के कचरे साफ कर लेना, कहीं स्वच्छ अभियान पे काम कर लेना। यू आर लिंकिंग योर सेल्फ नॉट टू योर फ्रेंड्स, not to your peer but to the whole nation। और अब इसकी तो फोटो तो डाल दो जरा सोशल मीडिया and see how many blessings are there। People will love to hug you, people will love to kiss you, and that's how brain में से ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है। अब बताओ, एक तरफ एक बच्चा है जो पबजी में लगा रहता है, शायद अब तो पबजी आई थिंक बैन हो गई है, लेकिन दूसरे भी सारे गेम है और थोड़े दिन में और भी नए गेम्स आ जाएंगे जो तुम्हारे ब्रेन फंक्शन में पूरी तरह से उसके मैकेनिज्म पे कार्य करते हैं तुम्हें एडिक्ट बनाने के लिए। सो एक तरफ बच्चा इस तरह से इन्वॉल्व है, पूरी तरह से लेजी, बिंज ईटिंग खाना, जंक फूड एंड ऑल दीज गैजेट्स। और दूसरी तरफ है जो बच्चा पेरेंट्स से, टीचर से, सबसे डिस्कस करता है, फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, प्रॉपर स्लीप लेता है, बढ़िया खाना खाता है, रोज सुबह 5 मिनट मेडिटेशन करता है, और शाम को कम से कम 1 घंटा, आधा घंटा किसी की हेल्प करता है। अब नाउ यू टेल मी, ऐसे बच्चे का कॉन्फिडेंस कैसा होगा, सेल्फ एस्टीम लेवल कैसा होगा, उसकी पर्सनालिटी का ग्रोथ कैसा होगा, इस बच्चे के पीछे कितने लोगों की ब्लेसिंग जुड़ी होगी, और इसके साथ उसका खुद का गोल, विजन कितना क्लियर होता जाएगा। दिस इज द पावर ऑफ प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। और यदि आप 12, 13, 14 साल के एज में सारे काम करने लग जाओ, एंड यू सी यू आर अनस्टॉपेबल, कोई तुम्हें रोक ही नहीं सकता तुम्हारे गोल तक पहुंचने के लिए, किसी भी एनवायरमेंट में हो, तुम कमल के समान होगे किसी भी कीचड़ में। सो दैट इज द पावर। एंड द थर्ड इज हॉर्मोन्स। इस समय तुम्हारी बॉडी में, ब्रेन में ऐसे हार्मोनल सर्ज होते हैं जो तुम्हारे सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करते हैं। एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, राइट? टेस्टोस्टेरोन क्या करता है? तुम्हें ब्यूटीफुल फिजिकल ग्रोथ देता है, विगर देता है, करेज देता है, एग्रेशन देता है, एंड नाउ यू आर एबल टू टेक रिस्क। लेकिन तुम क्या करते हो? इसका एग्रेसिव गेम खेलना शुरू कर देते हो, जहां टोटल वायलेंस है। यू स्टार्टेड सीइंग द वेब सीरीज इन जहां पे चारों तरफ वायलेंस है, एंड यू आर इन्वेस्टिंग द मोस्ट ब्यूटीफुल फिजिकल इमोशनल ग्रोथ इन दिस वे। एंड द गर्ल्स, एस्ट्रोजन अब उसका सर्ज यदि हो रहा है, सो व्हाई इट इज हैपनिंग टू यू? You are becoming so beautiful, sensitive, compassionate, so lovable and charming. It is giving you the identity and creating so visible difference in gender. And the nature is assigning you a very powerful, dominant role to play. So feel proud on self, fall in love with the self, appreciate yourself, and respect that different gender, different identity. That's how it is happening to you. And your life is just like a water park. Various rides are there, but always choice is yours. एक बार स्टार्ट करोगे ना, किसी भी राइड में बैठोगे, कहीं पर ब्रेक नहीं होता है, कहीं पर भी लुकिंग बैक नहीं होता। चाहे तो इंडल हो जाओ अपने फेवरेट मोबाइल में, अपने फेवरेट वीडियो गेम में, वेब सीरीज में, बीबी के पॉइंट्स में विच इज फुल ऑफ एब्यूजिव लैंग्वेज, पॉर्न साइट में चले जाओ, सिगरेट ले लो, दारू ले लो, वीट ले लो, ऑल दीज आर फुल ऑफ एडिक्टिव। तुम पूरी तरह से एडिक्शन में चले जाओगे, क्योंकि ब्रेन में डोपामिन रिलीज करता है, प्री मैच्योर सेक्सुअल रिलेशन में चले जाओगे। और यदि कितने बच्चे आते हैं हमारे पास 11th standard, 10th standard, already they are sexually active,
कितनी बच्चियां आती हैं जो प्रेग्नेंट हो जाती हैं और फिर वो अबॉर्शन के लिए उनको जाना पड़ता है, मजबूरी में बेचारे पेरेंट्स के साथ आते हैं, डॉक्टर्स के पास जाते हैं। कैन यू बिलीव दैट बच्चा पेट में माँ के 9 महीने रहता है। जब वो 9 महीने रहता है तो वो पूरी तरह से डेवलप होता है और फिर पेट से बाहर आता है जैसे तुम निकले। लेकिन यदि यही बच्चा 7 महीने में हो जाता है, 6 महीने में हो जाता है, तो उसकी हालत क्या होती है? वो प्री मेच्योर होता है, राइट? और जो प्री मेच्योर बच्चा होता है तो मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में या तो वो फिजिकली हैंडीकैप्ड हो जाता है या मेंटली हैंडीकैप्ड होता है। The same thing happens with a premature sexual relation. If you are not prepared physically, mentally, emotionally to take the responsibility and you are indulging in these type of activities, यहाँ स्कार रह जाएगा, यहाँ स्कार हो जाएगा एंड योर बॉडी विल ऑलवेज रिमेन हैंडीकैप कि जब वो टाइम आएगा यू आर नॉट एबल टू मेक एनी सैटिस्फैक्टरी सेक्सुअल रिलेशनशिप। एंड कहीं ना कहीं एक डर, एक फियर हो जाएगा कि कहीं किसी को पता ना चल जाए, ये पूरी पर्सनालिटी को डैमेज करता है। एंड यही सारी चीज तो है जब बार 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 इसमें इंडल्ज होते हो, बिकॉज इट इज एडिक्टिव। तुम्हारा इंटरनल पावर स्लोली 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 डिमिनिश होता है एंड बिकॉज यू आर डिपेंडेंट अपॉन आउटसाइड थिंग, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, इसकी तरफ जाओगे, गैजेट्स की तरफ जाओगे, बिंज ईटिंग की तरफ जाओगे, बिकॉज यू आर ट्राइंग टू सर्च योर हैप्पीनेस एंड पावर इन ऑल दीज थिंग्स। जितना बाहर डिपेंडेंट होगे तुम्हारा ब्रेन और बॉडी का पावर स्लोली स्लोली खत्म हो जाएगा एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट यू आर सक्कम टू डिप्रेशन, schizophrenia is पागलपन, सुसाइड अटेम्प्ट एंड अल्टीमेटली पेरेंट्स मजबूर हो जाते हैं, क्या करेंगे? रिहैबिलिटेशन सेंटर। आई एम द ट्रस्टी इन वन रिहैबिलिटेशन सेंटर और जब मैं वहां पे विजिट पे जाती हूँ तो आई हैव सीन सो मेनी यंगस्टर्स आर देयर। कोई डॉक्टर का बच्चा है, कोई लॉयर का बच्चा है एंड ये बच्चे बहुत पढ़े लिखे हैं क्योंकि इन्होंने बताया कि हमारे मम्मी पापा रात भर जग जग के हमको पढ़ाते थे, एग्जाम के समय में हमको पूरा घुट्टा लगवा के फिर भेजते थे, लेकिन मैंने कभी मेहनत नहीं किया और आज ये हालत हो गई कि पूरी तरह से डिग्री लेने के बाद भी ये पूरी तरह से एडिक्ट रह गए क्योंकि इन्होंने खुद चलना नहीं सीखा, खुद उड़ना नहीं सीखा, हमेशा मदद ली, अपने दिमाग को इस्तेमाल नहीं किया। और जब माँ बाप बहुत परेशान हो जाते हैं, उनके पास तुम्हें सिखाने का कोई तरीका नहीं होता, तब रिहैबिलिटेशन सेंटर में आपको भेजना पड़ता है। सो नेवर एवर चूज दिस टाइप ऑफ थिंग, and because this is the age very crucial to develop your intelligence, your emotional strength and your physical power, because that is the only condition to dominate the whole world. And you have seen that आज नरेंद्र मोदी 69 years के एज का है एंड आज पूरी दुनिया में उसके टक्कर का लीडर नहीं है। व्हाट इज द स्ट्रेंथ, क्या क्या दम है उसके अंदर? सिर्फ प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स इमोशनली इतना स्ट्रांग है। यदि उसकी सिर्फ सुबह से रात तक की आप सिर्फ रूटीन भी पता कर लोगे ना कि वो सुबह उठ के क्या करता है, वो मेडिटेट करता है, वो एक्सरसाइज करता है, वो काम करता है एंड ही इज सर्विंग टू सो मेनी पीपल एंड विदाउट एनी इंटरेस्ट, और वो अपने को किस तरह से ग्रो कर रहा है। तो आज 69 इयर्स के एज के लोग या तो वृद्धाश्रम में पड़े हैं या घर में या झुक झुक के चल रहे हैं। Only your monoball can create the wonders. And I'm telling you one last story. And actually, this is the real story. Last year, ये मैंने पढ़ा था न्यूज में, एक गांव था जिसमें एक साइकिल स्टोर था जिसमें एक आदमी काम करता था। काम नहीं, एक्चुअली साइकिल स्टोर उसका ही था और उसके 2 बच्चे थे। अब मैं जिस बच्चे की बात कर रही हूँ उस समय वो बच्चा 10th स्टैंडर्ड में पढ़ता था और जब 10th स्टैंडर्ड में एग्जाम दे के आया मार्च में, तो 21st को उसका मार्च एग्जाम खत्म हुआ और 23rd को उसके फादर की डेथ हो गई। जब फादर की डेथ हुई तो अब वो बच्चा इतना परेशान हो गया कि उसकी एक बड़ी बहन और मम्मी सारी जवाबदारी और पूरे घर का खर्चा उस साइकिल स्टोर से चलता था।
तो उसने डिसाइड किया कि अभी मेरे को पढ़ाई नहीं करना है, मुझे अब मेरे घर का खर्चा चलाना है, मेरी मम्मी का और भाई का ध्यान रखना है, तो मैं अपने पापा का स्टोर संभालूंगा, और वो उस पर बैठना शुरू कर दिया। मई में जब रिजल्ट आया तब पता चला कि ये रिजल्ट में बच्चे ने पूरे गांव में टॉप किया है और उसने मेरिट में आया है। जब उसकी माँ को ये खबर पता चली तो उसकी माँ पीछे पड़ गई, अड़ गई कि नहीं बेटा, अभी तुझे साइकिल स्टोर में नहीं बैठना है, तुझे पढ़ाई करना है। लेकिन पढ़ाई करने के लिए पैसे भी चाहिए, आपको यूनिफॉर्म भी चाहिए, आपको टिफिन भी चाहिए, आपको वाटर बॉटल भी चाहिए। इतना खर्चा कहाँ से आएगा? बच्चा बोला कि नहीं, मैं नहीं पढ़ूंगा मम्मी, मैं यही काम करूंगा। लेकिन उसकी माँ पीछे पड़ गई। अब वो मजबूर हो गया तो उसने स्कूल जाना शुरू किया। लेकिन इस बच्चे को पता था कि मेरे पास कुछ पैसे नहीं है, कुछ नहीं है, अब जो भी होगा, मेरे को एक ही चीज आती है, मुझे पढ़ना आता है, मुझे समझना आता है, मुझे पेपर देना आता है। मैं तो बस ऐसा करूंगा कि मैं पढ़ाई करूंगा, मुझे स्कॉलरशिप हर हाल में मिलनी ही चाहिए, क्योंकि बुक्स के भी खर्चे। अब उसने सिर्फ पढ़ाई करना शुरू किया, पढ़ाई करना शुरू किया, और हर क्लास में फर्स्ट आने लगा। तो अब टीचर्स ने जैसे ही देखा कि ये बच्चा इतना टैलेंटेड है, उस टीचर्स ने फंड इकट्ठा करके इसकी बुक्स, इसकी यूनिफॉर्म, सबका इंतजाम किया। 12th में बच्चा फिर से मेरिट में आ गया, उसमें भी टॉप किया इस बच्चे ने। अब फिर बात आती है कि अब कॉलेज यदि जाना है या इंजीनियरिंग में यदि जाना है तो फिर पैसे लगेंगे, उसके पैसे कहाँ आ गए? और तब इसने सोचा कि नहीं, अब इतनी पढ़ाई और इतने पैसे तो नहीं आ सकते हैं, क्योंकि इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन का खर्चा चाहिए। फिर भी उसने एग्जाम दिया और उसमें भी वो सेलेक्ट हुआ और बहुत टॉप कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज में उसका हुआ। लेकिन उसने सोचा कि अभी कॉलेज के कपड़े खर्चे मेरे से नहीं हो पाएंगे, मैं मम्मी के ऊपर बोझा नहीं डाल सकता। तो उसने सोचा कि नहीं, अब मुझे नहीं पढ़ना है, और वो फिर से अपनी मम्मी के साथ साइकिल स्टोर में बैठ के काम करने लगा। जिस दिन एडमिशन का प्रोसेस होने वाला था, तो उस दिन वहीं से सामने से एक डॉक्टर निकले। ये वो डॉक्टर थे जो इस बच्चे के फादर का ट्रीटमेंट करते थे। उस डॉक्टर ने पूछा कि बेटा, तेरा तो एडमिशन हो गया, तो क्यों नहीं जा रहा है? तब उसकी माँ ने बोला कि साहब, हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, और आज के आज पहले दिन 10,000 रुपए शायद जमा करने हैं, तो हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, बच्चा कैसे पढ़ेगा? वो डॉक्टर भी अपने बच्चे के एडमिशन के लिए जा रहा था। उस डॉक्टर ने इमीडिएटली उस बच्चे को पैसे दिए कि बेटा तू जा और एडमिशन ले। और वो बच्चा उस डॉक्टर के पैर पड़ के भागा भागा कॉलेज गया, और वहां पर उसने पढ़ाई शुरू की। अब उसको फिर पता था मेरे पास कुछ नहीं है, अब मेरे सारे खर्चे सिर्फ मेरे प्रोफेसर उठा सकते हैं और मेरी स्कॉलरशिप उठा सकती है। एंड उसने धुनी लगा दी और हर लेवल पे उसने उस कॉलेज में टॉप किया, और टॉप करने के बाद सारे खर्चे एज यूजुअल सर प्रोफेसर उठाते थे। एंड ही वाज द प्राउड स्टूडेंट ऑफ द होल कॉलेज एंड द होल यूनिवर्सिटी। फिर उसके बाद उसका इंजीनियरिंग कॉलेज में भी हो गया। अब जब इंजीनियरिंग कॉलेज में हुआ तो उसमें इंजीनियरिंग कॉलेज में उसने कंप्लीट कर ली पढ़ाई। तो अब उसको लगा कि यार व्हाट नेक्स्ट, इसके बाद और क्या होता है, क्योंकि उसका कैंपस इंटरव्यू में सिलेक्शन भी हो गया। अब माँ ने बोला कि बेटा, अब तो तुझे जॉब करना पड़ेगा, अब बस पढ़ाई। कि इस बच्चे को लगा कि इसके आगे भी कुछ होता है क्या, और उसने सर्च किया। तब पता चला कि भाई, इसके आगे सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स होते हैं, वो और टफेस्ट एग्जाम है, और इसके लिए बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है, और इससे ऊपर कोई एग्जाम नहीं होता। तब इसने बोला कि नहीं, मुझे तो सिविल सर्विसेज देनी है। लेकिन अगेन पता चला कि बहुत सारी कोचिंग करनी पड़ती है, और यदि मैं जॉब करूंगा तो मैं पढ़ाई नहीं कर पाऊंगा। तो अब इसको लगा कि कैसे करूं। विदाउट टेकिंग एनी कोचिंग ही स्टार्टेड ऑन हिज ओन। और उसके बाद जब उसने एग्जाम दिया, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही रिसीव्ड 34th रैंक। जब उसके दोस्त ने उसको कॉल करके बताया कि भाई, तेरा सिलेक्शन हो गया है और तू 34th में आया, तो उसने बोला भाई, 434th या 334th किस में पहुंचा? तो उसने बोला ओनली 34th रैंक। एंड दिस इज द बॉय जिसका एक डिसीजन कि मैं पापा के साइकिल स्टोर में बैठ के पूरे परिवार का खर्चा उठाऊंगा, और यही बच्चे के कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजंस एंड पेरेंटल सपोर्ट की वजह से ये कहाँ पहुंचा। और यू कैन नॉट बिलीव, उसकी पिक आई थी कि जब नरेंद्र मोदी उससे खुद मिलने गए थे और उसे हाथ मिलाए थे, ही वॉज अ डायनामिक पर्सन, राइट? सी,
just because of the choices, you can create your destiny according to your own ways. Now see, if यहाँ पहुँचते हो तो पावर है. लोग आपसे ऑटोग्राफ लेते हैं, लोग आपके साथ फोटो खिंचाना चाहते हैं, लोग आपके जैसा बनना चाहते हैं, लोग आपकी स्टोरीज पढ़ना चाहते हैं. इससे बड़ा पावर और कौन सा हो सकता है? इससे ज्यादा लव क्या होता है? इससे ज्यादा एप्रिसिएशन क्या होता है? एंड यू आर द रोल मॉडल फॉर मेनी. सो इट्स अप टू यू. You are here to choose. और जिस तरह से अभी कोविड टाइम चल रहा है, we are not aware अगला पेंडेमिक कौन सा है, अगला नेचुरल कैलेमिटी और क्राइसिस कौन सा, हमें नहीं पता. और ये सारे क्राइसिस हमें चेक करने के लिए हैं कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट और जस्ट फिनिश. सो यू नीड टू डिसाइड कि मुझे क्या करना है. तुम्हारे गोल, तुम्हारे विजन, तुम्हारे फ्यूचर बहुत क्लियर होने चाहिए. और यदि 9th स्टैंडर्ड में हो, 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, यदि अभी भी क्लियर नहीं है तो यू कम फॉर करियर काउंसलिंग. बिकॉज these days we are doing this online career counseling things. All the tests we are taking, all these are international standard tests. और उसमें बहुत क्लियर हो जाता है कि तुम्हें क्या बनना है, क्या करना है, व्हाट इज योर स्ट्रेंथ ऑफ द पर्सनालिटी, तुम किस तरह से पैशनेट हो, क्या अच्छा कर सकते हो और कौन सी वीकनेसेस हैं. और एक दो काउंसलिंग के सेशन तुम्हारी लाइफ को यदि बिल्कुल राइट डायरेक्शन दे सकते हैं, देन व्हाई नॉट. बिकॉज दिस इज द टाइम टू डिसाइड मालिक बनना है या बेगर बनना है, ओनर एंड बेगर. या तो जीवन भर प्यार, रिस्पेक्ट, पैसा सिर्फ मांगते रहो. तुमने मुझे फोन क्यों नहीं किया, तुम इससे बात क्यों नहीं करती, तुम इससे ऐसा क्यों नहीं करती, ऑल द टाइम आस्किंग. या अपने को डिजर्विंग कैंडिडेट बनाओ कि लोग तुमसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लें, लोग तुम्हारे पीछे भागे, लोग तुम्हारी स्टोरीज पढ़ें, लोग इंस्टाग्राम में तुम्हारी स्टोरीज पढ़ें. तुम ऑटोग्राफ देने वाले बनना चाहते हो या लेने वाले बनना चाहते हो, टीवी के अंदर बैठना चाहते हो, टीवी के बाहर बैठ के ताली मारना चाहते हो. इट्स योर चॉइस कंप्लीटली, बिकॉज द होल वर्ल्ड is waiting for new, young, dynamic leader, and that seat is very empty. So real power is in prefrontal cortex, the chief executive officer of your brain. Lot and lot of information and discussion. खूब physical activity, sports, music, dance, karate, सब कुछ करो. Proper sleep, nutrition बहुत अच्छा, meditation, मनोबल से बड़ा कोई ताकत नहीं है. और ये मनोबल तुम्हें किसी भी क्राइसिस से बाहर निकाल देगा. एंड स्टार्ट हेल्पिंग पेरेंट्स. चैरिटी करो, सोसाइटी में करो, किसी की मदद करो और अपने हार्मोन्स को रिलीज करो. एंड फील प्राउड ऑन योरसेल्फ, फील गुड अबाउट योरसेल्फ, राइट. खुद को कर बुलंद इतना कि हर तामीर से पहले खुदा बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है. यू हैव द पावर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. कीचड़ में कमल बनना तुम्हारा डिसीजन है. एंड यू मस्ट बी वंडरिंग व्हाट हैपेंड टू दैट बॉय. 2 महीने का टाइम लिया उस बच्चे ने, जो पहला केस मैंने आपको बताया था. एंड 2 महीने के अंदर नाउ बैक टू बॉडी शेप. ऑनलाइन फोटोग्राफी कोर्स शुरू कर लिया है. NIOS में रजिस्टर करा लिया है 10th के एग्जाम के लिए, 12th के एग्जाम के लिए. रेगुलर एक्सरसाइजेस करता है, होम फूड खाता है और मेडिटेशन करता है. एंड नाउ ही इज टोटली हैप्पी. सो थिंक बेस्ट फॉर सेल्फ, talk best for self, and act best for self, because you will start serving best for others. Thank you so much and all the best. Thank you so much and happy Sunday.